بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سویرے جب جاوید اپنے کام پر جانے لگا تو اس کی بیوی صدف اس سے الجھ گئی اور پھر دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ شادی کے چند عرصے کے بعد جب دونوں میں لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب دونوں ایک دوسرے سے نہ لڑے ہوں۔ یا تو روزانہ صبح آپس میں بحث ہوتی یا تو روزانہ رات کو دونوں جم کر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے۔ اس دن صدف نے غصے میں کہا کہ ٹھیک ہے، تم کام پر جاؤ تو صحیح، میں تمہارا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ آج کے بعد میں تمہارے گھر پھر پلٹ کر کبھی آنے والی نہیں ہوں اور بہت جلد میں تم سے طلاق لے لوں گی تاکہ تم بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکو اور میں بھی اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار سکوں۔ جاوید نے جب اپنی بیوی کی زبان سے یہ جلی کٹی باتیں سنی تو وہ بھی غصے میں کہنے لگا، تمہیں طلاق لینے کا بہت شوق ہے تو ٹھیک ہے، میں بہت جلد تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دوں گا، اور جب میں کام پر سے واپس پلٹ کر آؤں تو مجھے اپنی شکل مت دکھانا، میرا گھر خالی کر دینا۔ یہ کہہ کر جاوید غصے میں اپنے کام پر چلا گیا۔ صدف اپنے کمرے میں پلٹ کر آئی، اپنا فون اٹھایا اور اپنی والدہ کو فون کر کے کہا، امی، میں روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں، میں ایک جاہل آدمی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، اب میں اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں، اب ایک دن بھی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب صدف کی ماں نے یہ سنا تو کہنے لگی، صدف ہوش میں آؤ، بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، جلد بازی میں غلط فیصلہ مت کرنا۔ صدف یاد رکھو، اگر تم جاوید کے ساتھ یہاں آؤ گی یا جاوید کی اجازت لے کر آؤ گی تو میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے تم دونوں کے لیے کھلے ہیں، لیکن اگر اس طرح سے تم لڑ جھگڑ کر آؤ گی تو میں تمہیں اپنے گھر میں داخل تک نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم شوہر سے لڑ کر میرے گھر آؤ گی تو یاد رکھنا، میرے گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے تمہاری خاطر بند ہے۔ جب صدف نے یہ سنا تو وہ رونے لگی۔ اس پر صدف کی والدہ کہتی ہیں، اپنی بڑی بہن کو دیکھو، کس طرح سے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، وہ بھی تمہاری طرح روزانہ اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور آخر کار لڑ کر وہ یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ 2 مہینے کے بعد طلاق کا تقاضا کیا، اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اب یہاں 5 سال سے بیٹھی ہوئی ہے۔ کم سے کم اپنی بہن کی برباد زندگی کو دیکھ کر کچھ تو سبق حاصل کرو۔ جاوید کوئی برا آدمی تو نہیں ہے، تمہیں گالیاں تو نہیں دیتا، تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھاتا، شراب تو نہیں پیتا، ناجائز تعلقات تو کہیں قائم کر نہیں رکھے، وہ کم سے کم کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو۔ کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا؟ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہر سے الجھتی کیوں ہو؟ یاد رکھو، اب تمہاری جنت شوہر کی خدمت اور اس کی رضا میں ہے۔ اگر تم اس کو چھوڑ کر لڑ جھگڑ کر یہاں آؤ گی تو میں تمہیں اپنے گھر کی دہلیز تک پار نہیں کرنے دوں گی۔ اب صدف تمہیں کیا کرنا ہے، زندگی تمہاری ہے، فیصلہ خود کر لو۔ یہ کہہ کر ماں نے کال کٹ کر دیا۔ اب صدف نے جب یہ دیکھا کہ میری ماں نے ہمیشہ کے لیے مائکے کا دروازہ میری خاطر بند کر دیا تو زاروں قطار روتی رہی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی۔ اٹھنے کے بعد اس نے وضو کیا، اس کے بعد مصلی بچھایا، پھر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صدف مصلی پر تسبیح لے کر بیٹھی رہی، اللہ کا ذکر کرتی رہی، ساتھ ہی غور و فکر بھی کرتی رہی۔ ماں نے واقعی صحیح تو کہا، جاوید کوئی اتنا برا آدمی تو نہیں ہے۔ میری سہیلیاں اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں، کسی کا شوہر شرابی ہے، کسی کا شوہر جواری ہے، کسی کا شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، کسی کا شوہر بری عورتوں کی صحبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی کا شوہر اپنی بیوی کو رشتہ داروں کے سامنے گالیاں دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ کم سے کم میری سہیلیوں کے شوہروں کے مقابلے جاوید بہت اچھا آدمی ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، میری تمام ضروریات کو بھی
पूरा करता है। घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अच्छा पहनती हूँ, अच्छा खाती हूँ, वो मुझे घुमाता फिराता भी है, मुझे घर खर्च के अलावा जेब खर्च भी देता है। ये खामखा में मैं उससे उलझती रहती हूँ, लड़ती झगड़ती रहती हूँ। अब सदफ को कुछ गौर व फिक्र करने के बाद इस बात का एहसास हुआ, वाकई मैं जिन बातों को लेकर जावेद से उलझती हूँ, इन बातों को दरगुजर भी किया जा सकता है, आंखें भी बंद की जा सकती हैं। मैं छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ती झगड़ती रहती हूँ, हालांकि वो कभी खुद अपनी तरफ से लड़ाई झगड़े का आगाज नहीं करता, लेकिन जब मैं उलझती रहती हूँ तो मजबूरन उसे भी जवाब देना पड़ता है। जावेद इतना बुरा आदमी तो नहीं है। अब सदफ ने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया, रात जब जावेद काम पर से वापस आएंगे मैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगी, मैं खुद आगे बढ़कर उनसे माफी तलाफी कर लूंगी। इसके बाद वो रात का इंतजार करती रही। रात जब जावेद थका मांदा काम पर से घर वापस आया, सदफ ने मुस्कुरा कर दरवाजा खोला, सलाम किया और उसके बाद जावेद के हाथ से बैग लिया, जावेद को पानी का गिलास दिया। उसके बाद नीचे जमीन पर बैठकर जावेद के सॉक्स को उतारने लगी। जब जावेद ने सदफ को यूं देखा, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिर अचानक मेरी बीवी में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? वो सुबह तो तलाक की बात कर रही थी और अब वो मेरे कदमों में बिछी पड़ी नजर आती है। जावेद ने मोहब्बत से सदफ को उठाया और कहा, तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम्हारी जगह तो दिल में है। सदफ ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगी। उसके बाद कहा, आप कहें तो मैं आपके लिए चाय गर्म कर ले आऊं। जावेद ने कहा, नहीं, चाय बाद में पिएंगे, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी दस्तरख्वान पर बैठे खाना खा रहे थे। सदफ जावेद को निकाल निकाल कर खाना दे रही थी और साथ ही अपना भी खाना खाती जा रही थी। बहुत हिम्मत बटोरने के बाद सदफ कहने लगी, जावेद मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आज तक आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत बुरा भला कहा है। मैंने आज तक आपको कोई खुशी नहीं दी, मैं बस लड़ती झगड़ती रही। अगर आज आपने मुझे माफ न किया, अल्लाह भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। जावेद ये सुनकर कहने लगा, सदफ कैसी बातें करती हो, क्या मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता? याद रखो, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं घर में दाखिल हुआ, तुमने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया, मेरे लिए यही काफी है। तुमने मेरे हाथ से बैग ले लिया, मेरे लिए यही काफी है। तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरे लिए यही काफी है। सदफ तुम अकेले तो मुझसे नहीं लड़ती, गलती तो मेरी भी है। जब तुम गुस्से में होती हो, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। जब तुम उलझने की कोशिश करती हो, मैं भी बदतमीजी पर आमादा हो जाता हूँ, और यही वजह है कि घर का सुकून गारत हो जाता है। हम दोनों को एक काम करना चाहिए, अगर तुम्हें कभी गुस्सा आ जाए, मैं अपने दिलो दिमाग पर काबू रखूं, मैं गुस्सा न करूं। कभी मुझे गुस्सा किसी बात पर आ जाए, तुम अपने दिलो दिमाग पर काबू रखा करो, तुम नाराज ना हुआ करो। अगर दोनों मियाँ बीवी नाराज होंगे, फिर लड़ेंगे, उलझेंगे, झगड़ेंगे, दोनों का सुकून भी गारत होगा, जिंदगी भी तबाह होगी, और बसा बसाया घर भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सदफ आज से हम दोनों ये फैसला करते हैं, अगर किसी बात पर मुझे गुस्सा आ जाए तो तुम खामोश रहना, अगर तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ जाए, मैं वादा करता हूं मैं खामोश रहूंगा, मैं तुमसे उलझूंगा नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आपने देखा किस तरह से एक समझदार माँ की समझबूझ ने अपनी बेटी के बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद होने से बचा लिया। अगर उस वक्त माँ ने अपनी बेटी को रोका ना होता, मना ना किया होता, बल्कि शय दी होती गलत बात पर, तो आप बताइए क्या उसके घर के तबाह बर्बाद होने के साथ साथ उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद ना होती। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाओ, उस घर को छोड़कर बाहर मत निकलना, अपने शौहर के साथ निभाने की कोशिश करो, लड़ झगड़ कर आओगी, मेरे घर का दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारी खातिर बंद है। जब माँ के ये जुमले सदफ ने सुने, मजबूरन उसे अपने घर रुकना पड़ा। फिर नतीजा क्या हुआ, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत भी पैदा हो गई, जो परेशानी घर की थी, लड़ाई झगड़े की, उसका भी खात्मा हो गया। अगर हम अपने
अपने माजी की तारीख उठा कर देखें तो पता चलेगा कल की तारीख में ऐसा ही होता था। जब बेटियां डोली में सवार होकर अपने मायके से ससुराल रुखसत होती थीं तो रुखसती के वक्त माँ बाप अपनी बेटियों से कहते थे, बेटी अब ये तेरा घर नहीं है बल्कि वो तेरा घर है। वहां जाने के बाद सास ससुर को सास ससुर मत समझना, माँ बाप की तरह समझना। अपने ननंद और अपने देवर को ननंद और देवर मत समझना, छोटे भाई बहन की तरह समझना। अपनी जेठानी को जेठानी मत समझना, अपनी बड़ी बहन की तरह समझना। बेटी डोली पर सवार होकर जा रही है, अब वहां से जनाजे पर सवार होकर तुझे निकलना है। अपने शौहर के साथ आएगी। 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, और अगर सास ससुर शौहर की इजाजत के बगैर यहाँ आएगी, लड़ झगड़ कर आएगी, तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरी खातिर बंद हैं। लेकिन आज के दौर में एक बेटी जब मायके से ससुराल रवाना होती है तो बाकायदा माँ बाप अपनी बेटी से कहते हैं, भाई बढ़ बढ़ कर अपनी बहन से कहते हैं, बेटी हम अभी जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। हमारे घर का दरवाजा 24 घंटे तेरे लिए खुला है। ससुराल में कोई आंख दिखाए तो बर्दाश्त मत करना, कोई जबान दराज करे तो बर्दाश्त मत करना, कोई हाथ उठाए तो बर्दाश्त मत करना। अगर सास कुछ कहे तो हमें बताना, अगर शौहर हाथ उठाए तो हमें बताना। बेटी तेरे 4 भाई हैं, हम तुझे संभाल भी सकते हैं, हम तुझे पाल भी सकते हैं। ससुराल में किसी की बातें बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तेरी मर्जी हो तू वापस चली आना। अब तो ये नौबत आ चुकी है, हमने ये देखा है बाज बेटियां अपने शौहर के साथ ससुराल वालों के साथ जैसे तैसे निभाना चाहती हैं, लेकिन उनके अपने मायके वाले और खास तौर पर माएं अपनी बेटियों का घर बसने नहीं देती, तलाक करवाती हैं। लड़ झगड़ कर, धमकी देकर, गुंडे भेजकर, कोर्ट कचहरी और मुकदमा करके बस हमारी बेटी को छोड़ दो, हमें तलाक चाहिए किसी भी सूरत में। अल्लाह अकबर। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर बेटी को तरबियत सही दी जाए तो नतीजा क्या होता है। कहते हैं बादशाह की बेटी अगर किसी झोपड़े वाले को भी ब्याह दी जाए, तरबियत अच्छी हो तो झोपड़े वाले गरीब के साथ भी बादशाहजादी निभा ले जाती है। लेकिन अगर किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब की बेटी हो, तरबियत अच्छी ना हो, ब्याह कर उसे किसी महल में भेज दिया जाए, बादशाहजादे के साथ उसकी शादी करा दी जाए, लेकिन फिर भी माँ बाप अच्छे ना हो, तरबियत अच्छी ना हो, तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बेटी महलों में जाकर भी निभा नहीं पाती है। हमें और आपको चाहिए, अगर हमारी बेटी जज्बात में आकर, डर कर, घबरा कर, माहौल से मुतासिर होकर गलत फैसला करना चाहे, गलत कदम उठाना चाहे, हम गलत चीज पर उसका साथ न दें, बल्कि उसको समझाने बुझाने, उसके घर को और जिंदगी को तबाह बर्बाद होने से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक ताला सदफ और जावेद के इस वाक़े से हम सबको सबक हासिल करने और अपनी जिंदगियों को खुशहाल बनाने की, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल